mole concept. We were studying about mole equals to weight of substance in gram upon atomic weight और molecular weight. इस पे स्टडी किया था. Let's take one example. 9 gram NO. 9 gram NO. Mole equals to 9/30. ओके. अब इसके ऊपर सेकंड सेक्शन पे बात करेंगे बेटा. क्या चीज है? यहां था मास गिवन था, आपने मोल निकालना है. अब आपको मास कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग इन grams. Calculate mass of following in grams. Number 1, 0.5 mole CO2. Number 2, 1.5 mole NO. Number 3, 2.5 mole SO2. चलो. Yes. Mole equals to mass by atomic mass or molar mass. So what is mass? Mass in gram equals to mole into atomic mass or molar mass. Okay. Yes, any doubt? चलो जल्दी से सॉल्व करो, फुर्ती से. 3 ऑप्शंस आर गिवन टू यू. 30 seconds फॉर यू. यस, हरी अप, हरी अप, हरी अप. ओके, चेक योर आंसर्स. फर्स्ट, मास इक्वल टू 0.5 into 44, 22 ग्राम. सेकेंड, mass equals to 1.5 into 30 equal to 45 gram. It is 45 gram. Third, 2.5 mole SO2. मास इक्वल्स टू 2.5 को आप लिख सकते हैं 5/2 इंटू 64. SO2 64, सल्फर डाइऑक्साइड. यस, 32. इट इज 160 ग्राम. ओके. So from this formula we have made 2 type of questions. If mass is given, calculation of mole. Mole is given, calculation of mass. Okay? चलें, it's okay. चलो next. अच्छा, नोट नहीं किया? जल्दी नोट करें, हरी अप. हरी अप, हरी अप. Yes, copied. Okay. Question. Which of the following possess maximum mass? 1 mole NO, 1 mole glucose, 1 mole NaCl, all possess equal mass. Yes, try करें. 20 seconds.
ओके, फर्स्ट कितना आएगा, दिस इज 30 ग्राम, दिस इज 180 ग्राम, this is 58.5 gram. So this is our answer. Second maximum followed by third followed by first. Okay, इस पैटर्न पे पूछ सकता है, जल्दी कॉपी करें, बिल्कुल एलिमेंट्री चल रहा है, बिल्कुल एलिमेंट्री। स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ साथ हम क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे, पहले बिल्कुल एलिमेंट्री भी चलिए आप। कॉपीड, अब हम लेंगे टाइप 2, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। This is equal to 6.02 times power 23. इसमें देखो किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वांटिटी है 1 मोल, 1 मोल जैसा आपने बोला 1 डजन बनाना, इट मीन्स 12 बनाना, 1 सेंचुरी 100, वन मोल कार्बन 6 into 10⁻23 atoms of carbon, 1 mole CO2 6 into 10⁻23 molecules of CO2, 1 mole pencil 6 into 10⁻23 पेंसिल्स। तो 1 मोल एक नंबर है, एक नंबर है, सिंपल नंबर, दैट इज 6.02 10⁻23। इसको आप बोल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसको हम लोग इससे भी या इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, N0 और Na। यहां ए छोटा नहीं लगेगा बेटा, अगर आपने ए छोटा लगा दिया तो बन जाएगा सोडियम। ओके, चलो जल्दी कॉपी करें, क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर अभी। ओके, फोर 440 grams of CO2 is given to you. 440 gram of CO2 is given to you. Find number of moles, molecules, atoms, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे आपको। यस, वेरी फर्स्ट, व्हाट इज CO2, एटम और मॉलिक्यूल? यस, इट इज मॉलिक्यूल। अच्छा, सबसे पहले मोल निकालो, 440/44, वी हैव 10 moles of CO2। इसका मतलब क्या हो गया, 10 into N0 molecules आ गया। 1 mole N0 molecules, 10 moles, 10 into N0 molecules of CO2। yes,
अब देखो बेटा, 1 molecule CO2 possess 1 plus 2 is equal to 3 atoms. 1 molecule CO2 possess 3 atoms. So 10 into n naught molecule CO2 possess 10 into n naught into 3 atoms. 1 molecule possess 3 atoms. 1 of carbon, 2 of oxygen. So 10 n naught molecules possess 10 n naught into 3 atoms. Okay. Yes. अब आप फोकस करते हैं 6C12. 6C12 ओ पे चलो बेटा. 8 8 16 8 8 16. It will be pronounced as 6C12 8O16 8O16. यहां देखो श्रीमान जी, ये है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन. यस. हाँ. 1 molecule CO2, 1 molecule CO2 possess 6 plus 8 plus 8 electrons. 6 plus 8 plus 8 is equal to 22 electron, 22 proton and 22 neutron. ओके. कोइंसिडेंस, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, उतना ही न्यूट्रॉन है. तो 1 molecule CO2 possess 22 electron और 22 proton, 22 neutron. If ask about the nucleons, यदि न्यूक्लियंस पूछा तो 44 हो जाएगा. Therefore 1 molecule में we have 22 electron, protons और neutron, and we have 10 into n naught molecules. Therefore 10 into n naught molecules of CO2, 10 into n naught into 22. This is electron number, this is proton number, and this is the same neutron number. इलेक्ट्रॉन भी इतना ही है, प्रोटॉन भी इतना ही है, न्यूट्रॉन भी इतना है. सो एनी डाउट टू एनीबॉडी? दोबारा बताएं. ओके. हाँ. यू हैव गिवन द 440 ग्राम ऑफ CO2. आपने इसमें निकालना है मोल, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ओके. 440 से सबसे पहले आप निकाल दिया 440 अपॉन 44. सर ये 44 कैसे आया? अरे बाबू 44 CO2 का मोलर मास होता है 44. 12 प्लस 32 44. ठीक है. 10 मोल्स. एक मोल में n नॉट मॉलिक्यूल्स, तो 10 मोल में कितना आएगा? 10 इंटू n नॉट मॉलिक्यूल्स. ओके. एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, सो 10 n नॉट प्लस 10 इंटू n नॉट इंटू 3 एटम्स, out of which 10 into n naught into 1 atom of carbon, 10 into n naught into 2 atoms of oxygen. ऐसा भी पूछ सकता है. यस. ओके. ये आ गया आपका एटम्स. एंड 1 molecule of CO2 possess
6 plus 8 plus 8, 22 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन. One molecule possess this number of electron, proton and neutron. So we have 10 N naught molecules. 10 N naught molecules में कितना होगा? 10 N naught and 22 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. कोई शक? गुड. हरी अप, कॉपी करें आप फुर्ती से. यस. डन. Question is given to you. Calculate number of valence electrons in 4.2 gram of N3 minus. Calculate number of valence electrons in 4.2 gram of N3 minus. Very easy question. कोशिश करो. 30 seconds are given to you. कोशिश करें. Then after we will collectively solve this. Yes. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मोल निकालिए. 4.2 अपॉन N3. N 3 N 14 14 14. एटॉमिक मास N 14, N2 28, N3 एजाइड 42. We have 0.1 mole N3 minus एजाइड, 1 मोल. ओके, तो इसमें अपन निकालते हैं मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो. मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.1 इंटू N0 मॉलिक्यूल्स. एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स? एवोगैड्रो नंबर के बराबर. सो वी हैव 0.1 मोल रिजल्ट 0.1 इंटू N0 मॉलिक्यूल्स. किसका मॉलिक्यूल? दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ एजाइड आयन. एजाइड. यस. अब थोड़ा गौर करेंगे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन. 3 नाइट्रोजन N N N. 2,5 कॉन्फ़िगरेशन. स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा ना आप लोगों ने. 2,5 एंड दिस इज 2,6. क्यों 6? जितना नेगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा. अगर हमने लिखा N प्लस तो 4 आ जाएगा, N माइनस 2 तो 7 आ जाएगा. आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 आयन N3 माइनस. कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 प्लस 5 प्लस 6 16. 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 1 आयन possess 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
and we have how many ions? 0.1 into n नॉट. आयंस लिख दो या मॉलिक्यूल्स लिख दो. पॉलीवेलेंट आयन हो गया. 16 into 0.1 into n naught valence electrons. Okay, please go through this completely, quickly. Any doubt? Ask. Yeah, yes, any doubt? Any doubt to you? Yeah, gentlemen. You, yes, you please. Not at Oxford. Calculate number of valence electrons in 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस. कॉपी करें 20 सेकंड्स दे रहा हूं मैं आपको, फुर्ती से कॉपी करें. हाँ यस, नहीं दिख रहा, यस अब कर लीजिएगा. विजुअल. ओके. क्वेश्चन. Calculate total number of electrons in 4.2 gram of N3 minus. Earlier it was N3, नीचे था 3, अब 3 ऊपर है. यह है नाइट्राइड. नाइट्राइड IDE. H minus hydride. Yes, it is hydride. O2 minus oxide. N3 minus nitride. Yes. मोल निकालिए बेटा. (4.2) एटॉमिक मास 14. एक ही n है 14. 0.3 मोल ऑफ N3 माइनस. मोल आ गया. इसमें आयंस कितने हो जाएंगे? आयंस इक्वल्स टू 0.3. 1 मोल में किसके बराबर आएगा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर. 0.3 into n naught ions. Yes. So electron in one ion N3 minus equal to 10. एक आयन N3 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन है एंड वी हैव सच नंबर ऑफ आयंस. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 0.3 into n naught into 10. Okay, good. हाँ कॉपी करें कॉपी करें. यस. Calculate mass of 1 mole
इलेक्ट्रॉन। 1 मोल, 1 मोल कितना हो गया अवोगाड्रो नंबर? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 10⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास में? मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 into 6.02 10⁻23. Okay, yes, हाँ, unit is same, unit is same. It's kilogram. If you take here 28, then it will be in grams of gram. Oh yes. Copy करें, hurry up, जल्दी कॉपी करना बेटा। यस, नहीं क्या, चलो हरी अप बेटा, हरी अप, कॉपी करें, कॉपीड। क्वेश्चन, in how many gram of H2O the number of oxygen atoms is equal to number of carbon atoms in 88 gram of CO2। 88 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यू हैव गिवन 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट दिया आपको। One is H2O and another is CO2। One is H2O, another is CO2। बड़ा ही ध्यान से देखिए, इसको मैं 2 सेक्शंस पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इधर रखा आपने H2O, इधर रखा आपने CO2। In how many grams of H2O the number of oxygen atoms? Oxygen atoms equals to carbon atoms। क्या हो गया भाई इसके? इस H2O के ऑक्सीजन एटम्स का नंबर CO2 के कार्बन एटम्स के बराबर है। देखो इसमें क्या आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल, मोल इंटू N0 मॉलिक्यूल, मोल इंटू N0 मॉलिक्यूल, एटम्स। हर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितना है? हर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1।
अच्छा, हर मॉलिक्यूल में कार्बन का एटम कितना आ रहा है? 1। ओके, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मोल निकाल, एन नॉट से मल्टीप्लाई कर, मॉलिक्यूल आएगा, जो एटोमिसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर, मोल आ गया। वेट, कितना वेट है? हाउ मेनी ग्राम? दिस वेट इज अननोन टू यू। मोलर मास H2O 18, yes you are right, 18 into N naught into 1, वेट कितना ग्राम कार्बन? 88 ग्राम, 88 ग्राम CO2, N naught into 1. Answer is in front of you, nothing more than simple maths standard 5. N naught cancel out, 2, x is equal to 2 into 18, it comes to be 36 gram. 36 ग्राम। क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। की कॉम्प्लेक्सिटी पे बढ़ेंगे अभी अपना, आप कॉपी करें। क्लियर टू एवरीवन? दोबारा बताएं ओके। ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। ऑक्सीजन एटम्स का नंबर कार्बन एटम्स के बराबर है। ऑक्सीजन एटम किस में है? H2O, और इसमें क्या लिया है? CO2। एटम्स का नंबर, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, देन N नॉट, मॉलिक्यूल्स, देन एटोमिसिटी। Here also mole, molecules, atomicity. On solving we get 36 gram. Clear? सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। In 90 gram of NO, the number of nitrogen atoms equals to twice the number of carbon atoms in X gram of glucose. Yes please. सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। इधर लिया NO, इधर लिया C6H12O6। moles of NO into Avogadro number into atomicity of N is equal to, is twice the number, तो यहां 2 आएगा, 2 times mole of glucose into molecules into एटोमिसिटी ऑफ, क्या पूछ रहा है? कार्बन। दिस इज द आउटलाइन टू सॉल्व द क्वेश्चन। यस, कोशिश करें। 30 seconds I am giving to you, 30 seconds, then we will collectively solve. Solved? Okay, good.
मोल कितना आएगा 90/30 इंटू एवोगैड्रो नंबर एटम्स ऑफ एन, एटोमिसिटी कितना रहा 1, 2 इंटू एक्स ग्राम, एक्स 180 इंटू एन नॉट मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी कार्बन कितना एटम आ रहा है ग्लूकोज में 6, ये ले भाई, हो गया सॉल्व। एन नॉट से एन नॉट काट दिया, ठीक, 3 30 15, कितना बन गया x इक्वल टू 15 इधर आ गया, 6 3 जा 18 30 15 ऊपर चला जाएगा 45। दिस इज योर आंसर, यस प्लीज कॉपी कॉपी करें, कॉपी करें। copied, so okay next। अब हम मोल पे थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, वॉल्यूम पे। उसको करने से पहले अपन वॉल्यूम थोड़ा सा लिख लेते हैं, वॉल्यूम का कन्वर्जन कर लेते हैं अपन। वन लीटर इज इक्वल टू 1000 ml 10⁻³ ml 10⁻³ cm³ 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कैसे हुआ? अरे भाई क्या होगा, 1 cm इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 cm इंटू 1 cm इंटू 1 cm is equal to 1/100 1/100 1/100, तो 1 cm³ is equal to 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, therefore 10⁻³ cm³ is equal to 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। Okay, this is equal to 1 dm³। Small d for decimeter, capital D for decameter। हाँ, yes, are you getting my point? Yes, you हाँ, yes gentlemen, what about you? Okay, one mole gas at NTP or STP occupies the volume of 22.4 liter, 22.4 liter, 22,400 ml, 22.4 10⁻³ ml, 22.4 10⁻³ cm³,
22.4 10⁻³ मीटर क्यूब, और सिंपली 22.4 dm³ डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल गैस 22.4 लीटर 2400 ml 22.4 10⁻³ ml 10⁻³ cm क्यूब। 1 ml is equal to 1 cm क्यूब, 1 cm क्यूब। ओके, चलो अब हमारा टाइप थर्ड फॉर्मूला क्या है? मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4, वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml अपॉन 22,400। ओके, ये जो कहानी है, दिस इज एट एनटीपी और एसटीपी। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक। यस, एसटीपी टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार। दिस इज 1 atm, दिस इज 1 बार। स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी मैं आपको प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स बता दूंगा, कन्वर्जेंस आप कॉपी कर सकते हैं। हरी अप प्लीज। यस, नहीं लिखा, चलो कोई, हरी अप। डन। वन atm is equal to 76 centimeter of mercury, 760 mm of 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1.01325 10⁵ पास्कल, और इट इज 1.01 बार। यस, टॉर में भी ले सकते हैं बेटा, इट इज 760 टॉर। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर याद नहीं हो तो 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, याद करना ही पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो हमने यहां प्रेशर कन्वर्जन किया, वॉल्यूम कन्वर्जन किया था। थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में बता देता हूं मैं आपको। छोटा टी डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी केल्विन। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेगा तो क्या आएगा? T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इक्वल टू केल्विन। हम लोग न्यूमेरिकल में 273 ही काम लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू इज 273 प्लस 0.15। व्हेन देयर इज क्लोज आंसर तब आप इस पे जाइए, अदरवाइज सिंपली आप 273 लिखेंगे। एग्जाम्पल,
0 डिग्री सेल्सियस इजकल टू 273 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस इजकल टू 298 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस इजकल टू 300 केल्विन, राइट। ये हमने किया डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। अब हम बात कर सकते हैं किसका, यस यस यू आर राइट, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। क्या रिलेशन है, C इजकल टू 5/9 F माइनस 32, 5/9 F माइनस 32। एग्जाम्पल करो आप, थर्टी 37 डिग्री सेल्सियस जो आपका हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। 37 इजकल टू 5/9 F माइनस 32, 37 इंटू 9/5 F माइनस 32। ये लगभग हमारे पास में 98.6 के आसपास आ जाएगा। ओके, यू कैन सॉल्व इट। यस, आगे बढ़े आप। अगला मैं एक ले रहा हूं -40 डिग्री सेल्सियस इजकल टू डैश फ़ारेनहाइट। C इजकल टू 5/9 F माइनस 32 -40 इजकल टू 5/9 F माइनस 32 -40 इंटू 9/5 इजकल टू F माइनस 32 -72 प्लस 32 इजकल टू F इजकल टू -40। क्या आ गया, -40 डिग्री सेल्सियस इजकल टू -40 फ़ारेनहाइट, सेम आ गया। याद रख लो, एग्जाम में ये आएगा तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा याद रख लो डायरेक्ट। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, दिस इज -40। ओके, कॉपी कीजिए। यस, कैसे calculate number of moles in following at NTP और STP। नियरली सेम आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, टेम्परेचर सेम है। आप इस फॉर्मूले से करेंगे बेटा, P1 V1 बाय T1 इजकल टू P2 V2 बाय T2, दोनों में टेम्परेचर सेम है। प्रेशर 1 atm और इसको बार में कन्वर्ट कर लो, उतना ही डिफरेंस वॉल्यूम में आएगा। हाँ जी, 11 ग्राम पहले अपन वॉल्यूम से ले लेते हैं।
फिर अपन आगे बढ़ेंगे. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉलोइंग. 11.2 लीटर CO, 5.6 लीटर SO2, 100 लीटर CO2. Yes. N is equal to 11.2 upon 22.4, 5.6 upon 22.4, 100 upon 22.4. कोई शक? सिंपल कैलकुलेशन. अगर वैल्यू पूछेगा तो देखो ये थर्ड मैक्सिमम हो गया, फॉलोड बाय फर्स्ट, फॉलोड बाय सेकंड. कॉपी करें. which possess maximum number of moles, which possess maximum number of moles. $100 liter CO2, 100 liter SO2, 100 liter H2, all possess equal number of moles. अरे भाई इक्वल वॉल्यूम है, NTP पर है तो इक्वल मोल्स हो जाएगा. PV इक्वल टू NRT, P1 V1 N1 R T1 अपॉन P2 V2 N2 R T2. Two or more gases having equal pressure, temperature and volume, their number of moles will be equal. दो या दो से ज्यादा गैस जिनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है तो मोल भी सेम होगा. सीधा आंसर, सीधा. प्रेशर सेम है, P1 P2 कट गया. वॉल्यूम सेम है, V1 V2 कट गया. R सेम होता है, T1 T2 कट गया. तो N1 इक्वल्स टू N2. क्या कंसेप्ट आ गया? टू और मोर गैसेस at equal temperature, pressure, volume, then number of moles is same. प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम तो मोल सेम आ गया. अच्छा सर फॉर्मूले से करें, फॉर्मूलेस कर लो, कोई बात नहीं फॉर्मूलेस कर लो आप. इसका मोल कितना आएगा? मोल ऑफ CO2 100 बाय 22.4, मोल ऑफ SO2 100 बाय 22.4, मोल ऑफ H2 100 बाय 22.4. सेम.